या तो आप सबको इस पे क्लिक करना है, Azure for Students। आप इस पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑफर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, आपको उस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। आई थिंक आप सबका पेज ओपन हो गया होगा। यस, here you will click on this start free, this green button। आई थिंक आप सब फॉलो कर पा रहे हैं मेरे स्टेप्स को। नाउ यू हैव टू यूज योर यूनिवर्सिटी आईडी, वट एवर इज गिवन टू यू बाय यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पर फिल करना है, राइट? Yes, guys, I hope you all are doing with me. So please let me know. And step by step, now you will complete this procedure because I'm not having any student ID, so I can't come along with you. You have to complete this procedure and let me know that you have got subscription. Yeah, sure. Okay. Shagupta, you have to open this Microsoft Azure portal. You will just type portal.azure.com. You have to type portal.azure.com. Then you will be here. Your page will be like this. Okay. Now you have to take subscription to use the Azure services. अगर आपको Azure services यूज करनी है तो आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेना होगा, राइट? तो आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। ऐड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा, दिस वन। ठीक है? नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस Azure for Students, right? So you will click on this select offer and you will be here on this page, right? When you will be there on this page, you have to fill the details step by step, and after completion your steps, you will get your sponsorship. इसमें दो कंडीशन दोनों को चेक कर दें। Ayush, you have to mute first. Yeah, you now tell me. See, I think जो भी I think tick options आ रहे हैं. See, one will be for advertisement. No need to click on that. Another one you can click. And who is this Kumar? May I know who are you? Yeah, first time in my class. You have to let me know that who are you, otherwise I will remove you from my meeting. Okay, it's Manish. Okay, Manish. So why didn't you use your name? Okay, guys. So it's clear till now. All are done. Anyone who is not done, let me know. How is that possible? See, Mohammed, look here. Okay. I think based on your ID. I think so. Okay, anyways, see, Mohammed, look, when you're clicking on this subscription, you will be here on this page.
right? When you will click on this add button, there are three options. I think on that day you were not done with it, Mohammed. See, Azure for students. Are you getting that option? Now you are getting. Yes. So click on that, select offer. Yeah, you can use your college ID. You have to use it for subscription. Otherwise, it will not use Outlook ID. Means any other Outlook ID. Like if I will generate my Outlook ID, so it will not allow me. See, it will be showing like this. Wait a minute. When I will click on this select offer, so there will be this option, student verification. Is it? Is it showing you? Yes, Mohammed. I hope all are done. Please, guys, let me know. I have told you just 3 steps, and then you have to complete your subscription. Yes. Which third option? Means student. For student, it is not showing you Azure for students. Is it? Is it, Mohammed? Okay, so I think last time you are done. Is it? It must be. I don't know why it is not showing in yours. Hmm. Share your screen, Mohammed. There is an option. Share your screen with me. See, there is a three dot option. Click on that. You can share your screen. Share it with me. Yes, others. I got response from some of you. That is Kamini, Akshita, Namita, Aditya. Yes. Only 4 are done. What about you all? Guys, we have to use our Azure services. So this is required actually. Okay, you are filling now. That's fine. Okay, I'll wait for that. Fine, but do complete your this procedure. Hmm. Refresh once. Refresh your screen. Yeah, try to do that. Hmm. He is here. Yes, others. Vivek, Manish, tell me fast. Shatub, Shagupta, where is she? Yeah, she is here. Okay. Okay, Manish. Yes, guys. Tell me fast. Are you done? Okay. Good. Congrats. Who is pending? I'm waiting for you all. Let me know. Let me know if you are done. Which one, Ayush?
anyone you can select. If they are asking, you have to select. If they are not pressurizing, then let it be. Maybe it will be related to advertisements. You can click if they will just send you mail, nothing else. Okay, guys. So all are done. So can I move ahead? It's okay. You got a message that your subscription is done. So what message last you got? Submit. You submitted. Mohammed is not done. Okay, Mohammed, you just wait. I will take your ID and I will create it for you. Okay? You wait. After exhaust to students means when you were there on this page, here, start free. Yeah, so you have filled this verification. You got this form. Refresh your screen. When you will click here on select offer, you will have a green button first. This green button. Click on that. Start free. Are you getting this green button? Yes, Shah Gupta. Start free. Click on that button and then you will be here on this page. Okay, welcome. Okay, so I think no one is pending now, so we can start our today's work, right? So one more thing, if you want to check your subscription that you got it or not, you will just click on. Wait a minute, let me close my all tabs. Yeah, so now you have to search Microsoft Azure sponsorships. So you will check your balance. So here it is. Microsoft Azure sponsorship.com. I'm sending you this. So check your balance that you got or not. Okay. Yeah. Now is it visible? So here you can check your balance. So you will see around $100 you will get for 1 month. So for 1 month, you can use services. And after that, if you want Azure services again, then you have to use your credit card. Otherwise, any other ID of college or school, whatever. Right? So we all are done. Fine. So let us do something about, let us know. So about Azure actually, what is Azure services? So before that, we have some questions in our mind. First, that is cloud computing. What is that? See guys, if I say that
मेरे पास ना आई हैव एन आइडिया लाइक कि मुझे अपना एक एप्लीकेशन बनाना है, एंड एप्लीकेशन अगर मुझे बनाना है तो वो जो एप्लीकेशन मैं बनाना जा रही हूँ वो हाईली प्रॉफिटेबल होगा और बहुत ज्यादा यूजर्स उसे यूज भी करेंगे। जस्ट मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे एप्लीकेशन बनाना है, आई वो कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो एप्लीकेशन मेरे लिए। वन मोर थिंग कि जब उसे बहुत ज्यादा यूजर्स एक्सेस करेंगे। बट अगर मेरे पास माइंड में आइडिया आया है तो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स भी आएंगी कि अगर मुझे मेरे इस एप्लीकेशन को, उस मॉडल को मुझे बनाना है तो उसके लिए मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो क्या क्या होंगी। फर्स्ट वन विल बी सर्वर्स, स्टोरेज, डेवलपर्स, नेटवर्क, सिक्योरिटी, so many points will be there. Wait, let me show you on the video. Wait a minute, guys. Better to use. Okay. What Ayush? Okay, no. I was just telling you about Azure. That what is Azure? What are the cloud computing services? So wait a minute. Let me open mine. See, I was telling you like कि मेरे पास अपना एक आइडिया है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आइडिया को पब्लिश कराना है। तो पब्लिश कराने के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट्स भी तो फुलफिल होनी चाहिए ना। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास सर्वर होना चाहिए, देन मेरे पास स्टोरेज डिवाइसेस होने चाहिए, राइट। देन मेरे पास क्या होना चाहिए, नेटवर्क होने चाहिए। आफ्टर दैट डेवलपर्स होने चाहिए उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए। देन सिक्योरिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इन सब पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं अपने सर्वर से रिलेटेड स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क, डेवलपर, सिक्योरिटी सब मैं अगर खुद ही इन्वेस्ट कर दूंगी इन सब चीजों पे तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर मैं इनिशियल सेटअप की बात करूं कि अगर मुझे मेरे आइडिया को फुलफिल करना है, मेरी उस एप्लीकेशन को मुझे बनाना है, पब्लिश कराना है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा बट एट एनी पॉइंट ये रिस्की भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये जो आइडिया, ये जो एप्लीकेशन, जो मॉडल होगा, अगर ये रन ही नहीं हुआ, मीन्स फॉर एग्जाम्पल जिस पर्पज से मैंने ये आइडिया बनाया है, ये एप्लीकेशन बनाया है जिस पर्पज से, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो मेरा तो जितना भी मैंने यूज किया, जो भी सर्विसेज यूज की मैंने, जो भी परचेजिंग की, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया मैंने, वो सब वेस्ट हो जाएगा। एंड ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगा। अगर मुझे मेरी एप्लीकेशन को रन करना है, पब्लिश करना चाहिए, यूजर्स उसे यूज करते रहे, एक्सेस करते रहे, तो डेफिनेटली मुझे इन सर्विसेज को पे करते रहना होगा, तभी मेरी एप्लीकेशन मुझे प्रॉफिट देगी। तो मुझे सर्वर्स भी रिक्वायर्ड रहेंगे, स्टोरेज भी ऑटोमेटिकली परमानेंटली रिक्वायर्ड रहेंगी, नेटवर्क, डेवलपर, सिक्योरिटी। मैं किसी भी चीज को ड्रॉप नहीं कर सकती। बट अगर ये सब करना है मुझे तो वाई टू इन्वेस्ट और ऑन, ये सब हमें खुद परचेज करने की जरूरत नहीं है नाउअडेज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि क्लाउड्स हैं। क्लाउड क्या करते हैं हमारे कि क्लाउड पे सब कुछ अवेलेबल है,
server, storage devices, network, developers, security, everything is there. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. Whatever service we will use, we will pay for that only. Just listen to me carefully, guys. Whatever service we will use, we will pay accordingly. Right? Let me give one more example. See, if we are talking about Azure, there are two services: cognitive services, computer vision. Right? So these services are like, अगर मैंने cognitive services को use किया है, ठीक है, कंप्यूटर विजन है इसके अंदर, कस्टम विजन है इसके अंदर, मैंने कॉग्निटिव सर्विस को यूज कर लिया तो उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, और कॉग्निटिव सर्विसेज के अंदर मुझे सिर्फ एक ही सर्विस को यूज करना है, दैट इज कस्टम विजन. तो व्हाई टू परचेज द होल, मुझे कॉग्निटिव सर्विसेज को परचेज करने की क्या जरूरत है जब मेरे पास एज़ोर ने मुझे कस्टम विजन डायरेक्टली यूज करने के लिए सर्विसेज दी हुई हैं. तो व्हाई I will subscribe first for cognitive services and then I will jump on computer vision or custom vision. No need of that. So it is giving us flexibility, like कि आपको जो भी सर्विस यूज करना है, you can use that. No need to pay for different services. Whatever you are using, just pay for that only. And until then, when you are using that, and in the end, if you are not using that service, just stop that. So deduction will not be. आपने जो अभी सब्सक्रिप्शन लिया है यहाँ पर, जब आप इसकी सर्विसेज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके सब्सक्रिप्शन में से अमाउंट डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. यू विल सी, आप जब भी आज की क्लास के बाद एक दो बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपना अमाउंट यानी कि ये बैलेंस चेक करोगे तो इट विल बी डिडक्टेड बिकॉज यू आर यूजिंग योर Azure services. So from you all, anyone heard about this service before and when it launched, the date? Anyone who will let me know? Okay, so the date of launch of Azure was 1st February 2010. It was 1st February 2010, right? And nowadays, Azure services go 80% of 500 Fortune companies are using it. I'm repeating, 80% of Fortune 500 companies are using this Azure service. And if I say that data centers की अगर मैं बात करूँ, Azure के जो data centers हैं, अराउंड 42 रीजन के अंदर अभी हैं और मे बी अराउंड 12 और होने वाले हैं. Maybe they are under process. So Azure is a cloud computing platform, or we can say an online portal to access and manage resources and services provided by Microsoft. तो ये जो सर्विसेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं? सीधा माइक्रोसॉफ्ट से. So we can say this is a computing platform, or we can say online portal. Yes, guys? Fine till now. So if we want to use any service or any resource on the cloud, so we can use this Azure cloud computing service. For example, see, if I want to use computing resources like virtual machines, storage devices, services, whatever I want to use, so these all are there on the cloud. So we are users, we will generally make the request, like we will do subscription and we can easily use the services. No hard and fast rule. Just you all did. अभी हम सबने यही चीज किया. Just we have taken subscription, sponsorship of that. अभी हम सबने लिया सब्सक्रिप्शन और जिसमें हमें $100 मिला है. So we can use the services. और सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स होने का सबसे अच्छा फायदा भी हमें यही मिला कि हमें फ्री में $100 मिल गए. अदरवाइज हम जैसे को तो क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता. ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि अगर हम इसकी सर्विसेज की बात करें तो जैसे मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिसिस है. तो जो डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े डाटा को एनालाइज करना होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक सर्विस है जिसे हम बोलते हैं ML एंड डेटा एनालिसिस. देन डेटा स्टोरेज एंड बैकअप्स,
स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट, फॉर एग्जांपल लाइक एंड से कि हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि उसका सारा का सारा जो शोज मूवीज किस पे है, वो क्लाउड पे ही है। तो दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ता है, आप उसका सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है नेटफ्लिक्स, तभी आप नेटफ्लिक्स को यूज कर पाते हो, तभी आप उसकी सर्विसेज ले पाते हो ना नेटफ्लिक्स को। अगर आप कोई भी यूज कर रहा है तो कैसे कर रहा है, डेफिनेटली कि उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, सबसे पहले सब्सक्राइब के लिए आपको पे करना पड़ता है, only then you can use their services whatever you want to see the series and all. तो ऐसे, ठीक है। Now if I'll say that how many categories, so many categories are there for Azure, like compute, artificial intelligence, machine learning, network, storage, security, web, media, analysis. So many categories are there of this Azure. So I will say around 18 categories, right? No, 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 no. I'm not writing anything. I was just speaking. Okay. So I think subscription is done, everyone. So we are here now on this page. Now, on this home page, you have to create a resource. Click on that, create a resource. After clicking on this, we have to take a cognitive service. You have to find out cognitive service. So here, all you can see cognitive services is there in front of you. We want to use this service of Azure. Why? I will let you know soon. I think, I hope you all received whatever I have mailed you all, the data and the file. So click on that cognitive services and now create. When we will create this cognitive services, we will receive key and endpoint. I am repeating, we will receive key and endpoint. Key and endpoint. Right? In endpoint, like say कि अगर if I want to use Netflix services, अगर मुझे Netflix की services को use करना है तो वो मुझे क्या देगा, एक HTTP एड्रेस होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एड्रेस है, अगर मुझे उसकी सर्विसेज को यूज करना है तो मेरे पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए मेरे पास, तो जिसे हम बोलते हैं की। विदाउट ऑथेंटिकेशन वी कांट यूज द सर्विसेज। तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, वन इज की एंड सेकंड इज एंड पॉइंट, राइट। तो कॉग्निटिव सर्विसेज हमें क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं की एंड एंड पॉइंट, राइट। सो नाउ यू हैव टू क्रिएट ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन. After clicking on this create button, you will see a sponsorship. मेरे पास Azure पास sponsorship है. When you will click on this subscription, आपके पास अपना sponsorship यहाँ visible होगा. Yes guys, it's there. Let me know. Yes. So click on that and now give a name, resource group. I think you have not created your resource group. So first you have to create your resource. Yes, say any name. You will see mine is my RG. You have to create yours. See, click. I'm coming back. You have to click on that create a resource. You have to click on that button, right? After clicking on this create a resource, you will type here cognitive services. Cognitive services, right? I have done. Shutub is here, I think. Shutub, yeah, he's here, right? So after clicking on this create button, you will get this form. You have to fill this, right?
So here I have taken my sponsorship. You will take yours. Okay. Now click on this resource group. Create new. I have mine. That's why I can click on that. You have to create your own. So आपको अपने resource group को कोई भी नाम देना है, like my resource group, my RG1, whatever you want to give. Give it to. I have given mine. That is my RG. No need to disturb this region. Now, name. अपनी कॉग्निटिव सर्विसेज को कोई नाम दो यहाँ पर. My cognitive services या my cog services, whatever you want to give it here. It should be unique. No need of that. No need of that. Reason को change करने की जरूरत नहीं है. And then pricing tier, that is standard as not. And by checking this, इसके बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है. It's okay. Otherwise, you want to choose whatever you can choose. Doesn't matter. अब देख लो नॉर्थ इंडिया आ रहा है तो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया कर दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ कॉग्निटिव सर्विसेज से मतलब है. फिलहाल हम सिर्फ अब यूज करके देखेंगे हमारी सर्विसेज को. तो हमारा प्राइसिंग टियर है, आपको क्लिक करना है, दैट इज स्टैंडर्ड एज नोट. एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस बॉक्स. Click here, and after that you will click on this review plus create. Till now, if all are done, please let me know. Where? Here, your cognitive services name, whatever you want to give here. We are going to use our cognitive services. So whatever the name you want to give to your cognitive services, you can give any unique name. Yes, after clicking on this review plus create, you will get one more option for create. Do that, you will be done with it. Yes, guys, all are done. Yeah. Not an issue. Do it, Aditya. There is no issue with that. See, this last option you have to press review plus create. After clicking on that, I think on the next page, you will also get one more option for create. Click on that. Wait, I'm coming there also. Yeah, the last option. No need of that. No need to do the next identity. Just click on review plus create, and after that you will get this page, and you have to click on this create. I hope all are done, guys.
Let me know who is pending. Yeah, after clicking on that, your cognitive services are there. Validation passed. Deployment is in progress. Yeah. Yes, everyone, please let me know that you all are done. You are not stuck anywhere. Yeah. And then you will click get a point there that was go to resource. Click on that after deployment, and here you will get your keys and endpoint. Yeah, click on this keys and endpoints. So here you will get your key and endpoints. So we will use these. Now we got our keys and endpoints. So how we are going to use these, I will let you know. First, I want reply from everyone that they all are done. Guys, please inform me. Priya, after 1 hour, you remind your class. Guys, please update me that you all are done so I can move ahead. Not now. Not now. Now we are done that we have received our keys and endpoint. How we will use that? I will let you know. No need to do that right now. Yeah, okay. Okay, so Kamini, Ayush, Manish, I think Aditya and Mohammed, आपको फिर भी ऑप्शन नहीं आया था? Shah Gupta, please inform me. Okay, okay, not to worry. Okay, I will do it for you. Don't worry. You in the end you have to drop your mail ID just. Okay, so I will do it. Anyone, कहीं किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, then please let me know. I will solve it here. Okay, then I think all are fine. So let's move. Okay, guys. So I have given you 2 files on your mail. I hope you all have received those files. Take those files here. Open this text analytics IPYNB file in your Jupyter lab. Okay. Come on, guys. I have mailed you 2 files. That was one is data and second one is IPYNB file. First, you have to open this file in your Jupyter, and then you have to import. You have to take your डेटा जो मैंने आपको जिप फाइल भेजी है उसमें आपके कुछ रिव्यूज हैं. रिव्यूज अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले ये चीज पढ़ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं. लाइक सी गाइस, सबसे पहले मैंने आपको अभी तक इतना बताया है कि हमने अजोर का सब्सक्रिप्शन लिया, देन हम अजोर क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विस यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉग्निटिव सर्विसेज. कॉग्निटिव सर्विसेज हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि हमें उसके कीज और एंड पॉइंट्स चाहिए. राइट अगर हमारा कोई प्रोग्राम बना हुआ है, हमें उसे पब्लिश कराना है, कोई एप्लीकेशन कोई मॉडल हमने बना दिया, उसे पब्लिश कराना है किसी और को, अगर हमारे उस प्रोग्राम को यूज करना है, so we will provide keys and endpoint to them to use our services, to use our program or application or model whatever we have made.
फॉर दैट वी हैव टेकन दोस थिंग्स. सो राइट नाउ अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ होटल्स के रिव्यूज है, एक होटल है उसके रिव्यूज है मेरे पास, मुझे उस पे एनालिटिक्स करना है. किस तरीके का एनालिटिक्स करने वाले हैं हम? टेक्स्ट एनालिटिक्स. टेक्स्ट एनालिटिक्स करने वाले हैं हम. उस पे क्या होगा हमारा कि हमारे पास लाखों रिव्यूज आए हैं एक होटल के, बट हर रिव्यूज को पढ़ना इट्स नॉट इजी. बार बार देखना कि किसके पॉजिटिव हैं, किसके नेगेटिव हैं, या किसी ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए उस होटल के बारे में, वो सब. या फिर हम बात करें कि न्यूज़पेपर की, कि हमें पूरा न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है, हमें एक्चुअली बता दीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, की फ्रेजेस बता दीजिए हमें, लैंग्वेज डिटेक्ट करके बता दीजिए कि कौन सी लैंग्वेज में वो पर्टिकुलर हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है. इस तरीके की अगर हमें एनालिटिक्स करनी है तो वी विल डू लाइक दैट. तो अभी एक प्रोग्राम मैं आपको करके दिखा रही हूँ. मैंने एक होटल का रिव्यू लिया हुआ है, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी क्या लोकेशन है, क्या टाइम डेट टाइम है, जो भी हमें चेक करना है, जिस भी तरीके का एनालिसिस करना है, वी विल डू इट. नो नो आदित्य, actually to read the file only. So see guys, now आइजैक की सबसे पहले आपने ले लिया अपना फाइल, देख लिया है, सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया? प्लीज लेट मी नो. Yes guys, everyone. Okay, that's really great that all are done with it. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना फोल्डर दिखाती हूँ. आप सबने भी अपना अपना फोल्डर देख लिया होगा, और जो मेरा है दैट इज टेक्स्ट. टेक्स्ट के अंदर आपके पास वेट अ मिनट गाइस, मेरा दूसरा फाइल ओपन है और now this one, and here there are 4 rivers, right? तो अगर हम खोलते हैं इस रिव्यूज को तो here you can see review 1.txt. कुछ इस तरीके का रिव्यू. डायरेक्ट फाइल ओपन नहीं होगा, आपको पहले जिप फाइल को डाउनलोड करके ओपन करना है. मोमेंट, राइट? तो आपका इस तरीके का कुछ रिव्यू गिवन है. अब आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है इस टेक्स्ट के अंदर से, जो भी. अब सिंगल रिव्यू तो ऑब्वियसली आएगा नहीं. अगर कुछ कोई 5 स्टार होटल है हमारा, उसके बारे में हमें रिव्यूज को एनालिसिस करना है उस रिव्यूज के ऊपर, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिव्यूज होंगे और उन रिव्यूज को हमें एनालाइज करना है, राइट? तो अब हम यूज कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट एनालिटिक्स को. So here you can see that what you did, you have done here reviews underscore folder. आपने एक फोल्डर लिया, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया that is reviews underscore folder. उसमें आपने बोला os.path.join और आपने अपना पाथ दे दिया. ठीक है, मेरा रूट डायरेक्टरी में यही पाथ था, मैंने ये पाथ लिया है. आपका जैसा भी पाथ है आप लीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ आई थिंक ऑल आर डन. नाउ अब मेरे रिव्यू फोल्डर में क्या क्या आया, तो सबसे पहले आप ये देखिए मेरे रिव्यू फोल्डर में क्या आया. यू कैन सी डेटा टेक्स्ट रिव्यूज. यहाँ पर रिव्यू फोल्डर में क्या है, रिव्यू फोल्डर में जो मेरा पाथ है वो ज्वाइन हो गया. कहा कि डेटा फोल्डर के अंदर टेक्स्ट के अंदर रिव्यूज रखे हुए, राइट? नाउ आई सेड os.list डायरेक्टरी रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर. अब क्या कर रहे हैं कि हम जो रिव्यूज फोल्डर के अंदर जितने भी रिव्यूज आए हैं, हमने उनको एक लिस्ट के फॉर्म में ले लिया. हियर यू कैन सी हमने सभी को एक लिस्ट की फॉर्म में ले लिया. यस गाइस, इतना एग्जीक्यूट कीजिए.
It's okay, Ayush. You can practice later. Rosie, first time you attend my class? Because I'm not having your mail ID. Yeah, it's okay. Anyways, but I was not having your mail ID. Anyways, who is your friend in this? You can ask from him. He will send to you. Yeah, anyone? Directly, it will not, Shagupta. You have to first open your file and then import it. First, you have to open your file and then consider it in another folder. Rosie, do you know anyone in this group? So you will ask. एंड आप मुझे बताइए जिसका भी ये कोड एग्जीक्यूट हो गया. Rosie, drop your mail ID. Yes, till then guys, जिसका execute हो गया, please inform me. Yes, Rosie, it's done. Now you can. Now import it and then execute. Yes, Aditya, Namita, and who else? Shagupta, try again. Yeah, sure. Let everyone. Yeah, sure, I will. I'm still there. Yes, others, please tell me fast that you all are done so I can move it. Okay, guys. So let me explain this first code again. This first cell. See, guys, what we have done, I have done import OS. Then I said मैंने OS library क्यों import किया because मुझे path को join कराना है, right? तो मैंने बोला os.path.join. मैंने बोला डाटा के अंदर टेक्स्ट के अंदर रिव्यूज रखे हो, राइट? तो आप भी अपना पाथ चेंज डायरेक्टरी करके कर सकते हो. os डॉट चेंज डायरेक्टरी पहले आप देख लीजिए क्या है आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपको पता चल जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज योर डायरेक्टरी. वी ऑल आर डन विद दैट. ओके, तो सबसे पहले आप कर लीजिए. उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्रिंट कराया आपने उस फोल्डर को, आपने रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर जो ऑब्जेक्ट बनाया था, आपने जो पाथ बनाया था, जिन आपने डाटा टेक्स्ट और रिव्यूज को ज्वाइन किया था, तो वहां पे आपने जाकर देखा कि आपको मिला. यस, यू हैव रिसीव्ड दैट डाटा टेक्स्ट रिव्यूज, राइट? नाउ व्हाट यू हैव डन, यू हैव os.list डायरेक्टरी मेथड आपने यूज किया to combine, to take these all things whichever there in the reviews underscore folder.
आपने उसको क्या कर दिया, एक लिस्ट में ले लिया, राइट? टिल नाउ आई थिंक होप ऑल आर क्लियर. कैन वी मूव अहेड? यस गाइस, प्लीज यस और नो का रिप्लाई कीजिए तो वी विल मूव इट. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. और पता है आप लोगों को कि आप लोगों ने चैट बोर्ड के बारे में तो सबने सुना हुआ है ना गाइस? चैट बोर्ड सुना आपने? व्हाट इज चैट बोर्ड? So when we will do that ना, you will definitely enjoy. और जिसने नहीं सुना है तो लेट मी नो कि आजकल मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के पास अपने चैट बॉट है. लाइक कि आपने बोला, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है. सबके अपने चैट बोर्ड के अपने नेम्स होते हैं, तो यूनिक नेम भी रखते हैं. तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी वेबसाइट या किसी की मेडिकल वेबसाइट पे भी एंटर होते हैं तो आपको बोलते हैं वो हेलो हाउ मे आई हेल्प यू. तो जब आपको इस तरीके का मैसेज मिलता है तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू आंसर. तो जब आप आंसर देते हो तो वहां से एक और आंसर आता है. और अगर आपके आंसर उनके आंसर से मैच नहीं करते हैं, आपके क्वेश्चंस उनके आंसर से मैच नहीं करते हैं, तो व्हाट विल दे डू? वो क्या कहते हैं कि वो आपको एक रिवॉर्ड देते हैं. दैट इज, इस बारे में उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. बट इफ एनी अदर थिंग यू वांट टू नो, प्लीज लेट अस नो. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट कि आप सबने ये चैट बोर्ड देखा हुआ होगा. अब तो सब बहुत ज्यादा यूजुअल हो चुकी है ये चीजें. यस. So okay fine, first cell I think सबका डन है. So let's move on second cell, right? So what I have done here, आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने एक रिव्यूज लिया हुआ, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने क्या किया, एम्प्टी लिस्ट लिया. अब एम्प्टी लिस्ट लिया तो डेफिनेटली किसी पर्पज से ही लिया होगा ना. तो मैंने क्या किया, मैंने एक फोर लूप लगाया. फोर लूप में मैंने क्या किया, मैंने लिया फाइल अंडरस्कोर नेम इन os.list डायरेक्टरी रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर. तो आपने रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर में अभी देखा था, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिला था दैट वाज व्हाट, रिव्यू 3214. रैंडम उसने जिस भी तरीके से रीडिंग की उस रिव्यूज फोल्डर से और उसने लिस्ट में डाल दिया. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 रिव्यूज मिले हैं, दैट इज रिव्यूज 1 2 3 4. फाइन, वन बाय वन इट विल बी असाइन टू दिस फाइल अंडरस्कोर नेम. हम सबको फॉर लूपिंग के बारे में पता है. तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी इस लिस्ट के पास, इस os.list के अंदर जितने भी आइटम थे, वन बाय वन किसको असाइन हो जाएंगे, फाइल अंडरस्कोर नेम को. फाइन, तो सबसे पहले इसको review3.txt मिला. ओके, तो आपने क्या किया, आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया review अंडरस्कोर टेक्स्ट. फाइन, देन यू सेड ओपन os.part.join reviews अंडरस्कोर फोल्डर. आप क्या कर रहे हो, आप एक और ज्वाइन कर रहे हो दो चीजों को. क्या क्या, रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर. रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर में क्या था आपके पास, 4 फाइल्स थी, उसमें से आपने फाइल नेम दिया, दैट वाज व्हाट, review3.txt. सबसे पहले आपके पास जो फाइल आएगी वो ये वाली आएगी, review3.txt. आपने पाथ को ज्वाइन किया और आपने क्या किया, रीड. आपने रीड किया, उस फाइल को ओपन किया और क्या किया, आपने रीड किया. ठीक है, तो रिव्यू टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, रिव्यू टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा गाइस, यस एनीवन? मैंने क्या किया, मैंने ओपन किया, सबसे पहले क्या किया, रिव्यू फोल्डर में फाइल नेम पाथ दिया मैंने, रिव्यूज फोल्डर. रिव्यूज फोल्डर में क्या था, डाटा टेक्स्ट रिव्यूज. मैं यहाँ तक पहुंची और मैंने यहाँ पे क्या दिया, फाइल नेम, दैट वाज व्हाट, review3.txt. मैं थर्ड फाइल पे आ गई. थर्ड फाइल पे मैंने क्या किया, रीडिंग. रीड किया मैंने उस फाइल को, वो जितना भी टेक्स्ट था वो कहाँ आ गया, रिव्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट के अंदर. फाइन, आफ्टर दैट आई सेड, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की. आई सेड आईडी. आईडी में मैंने दिया फाइल नेम. फाइल नेम मेरा क्या था, review3.txt. और टेक्स्ट में मेरा क्या था, जो अभी जो मैंने फाइल रीड की है, review3.txt, जो फाइल के अंदर था वो सब कहाँ आ गया, इस टेक्स्ट के अंदर. राइट, एंड देन व्हेन आई गॉट दिस डिक्शनरी पार्ट, जब मुझे डिक्शनरी पार्ट मिल गया तो मैंने क्या किया, reviews.append review. तो क्या हुआ, वन बाय वन जितने भी रिव्यू आपको मिले हैं वो इस लिस्ट के अंदर अपडेट हो जाएंगे. जो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया हुआ था वो यहाँ वन बाय वन अपडेट हो जाएंगे. गाइस, ये फर्स्ट फोर लूप आपको कुछ समझ आया, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना. जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको करा रही हूँ तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी आप लोगों को करके भी दिखाना है, नॉट ऑन द सेम
आपको एक और फाइल अपने आप से चूज करनी है, अपने आप से फाइंड आउट करनी है, और फिर उसके ऊपर ये पूरा टेक्स्ट एनालिटिक्स करके मुझे सेंड करना है दैट यू हैव डन सम वर्क। बिकॉज अब हम जो भी फाइल्स पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको क्या करना है, ऑन द हैंड आपको मुझे एक और फाइल बनाकर देनी है, आपको वही सर्विसेज यूज करनी है, टेक्स्ट एनालिटिक्स करके दिखाना है मुझे, वट एवर द फाइल यू विल टेक फ्रॉम देयर। अब एक चैटबॉट की अगर मैंने बात की है, तो आपको एक चैटबॉट भी बनाना है। तो डेफिनेटली अगर 1 बाय 1 आप ये सब बना लोगे तो खुद आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, फिर नहीं जरूरत पड़ेगी किसी और चीज की। या श्योर आई विल। इस फोर लूप को किस किस को समझ में नहीं आया गाइस, प्लीज लेट मी नो फर्स्ट। नो, हाउ इट कैन बी? No, it's about 2 hours. Don't worry, till 9 I will be there. Don't worry. Yeah, okay, Shagupta. Okay, fine. So see guys, I told you that कि अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ हमने क्या दिया था, एक पाथ ज्वाइन किया था जिसमें हमने रिव्यूज तक पहुंच गए थे। ठीक है, हमारा पाथ ये था जहां हम रिव्यूज को एक्सेस कर पा रहे थे। फिर हमने देखा कि रिव्यूज फोल्डर के अंदर एक्चुअली में है क्या। तो व्हाट वाज दैट, इट वाज हियर रिव्यू 3, 2, 1 एंड 4। नाउ आई वांट टू एक्सेस। अब मुझे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बोला है ब्लैंक लिस्ट बनाया मैंने। भाई मुझे क्या करना है, इन्हीं लिस्ट के अंदर 1 बाय 1 रिव्यूज को डालना है। जो मेरे पास रिव्यूज आए हैं ना, उन सबको 1 बाय 1 अपेंड करना है मुझे इस इन लिस्ट के अंदर। तो व्हाट हैपेंड नाउ, यू कैन सी दैट आपका ये फोर लूप है। फोर लूप में क्या हो रहा है, आपने बोला फाइल अंडरस्कोर नेम इन ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर। तो जब हमने इस पॉइंट को एग्जीक्यूट किया था, तो आप देख पा रहे थे यहाँ पर क्या क्या था, रिव्यूज 3 डॉट टेक्स्ट, रिव्यूज 2 डॉट टेक्स्ट, 1 डॉट टेक्स्ट एंड रिव्यूज 4 डॉट टेक्स्ट, राइट? यही सब था ना। तो 1 बाय 1 वो किसको असाइन हुआ, फाइल अंडरस्कोर नेम को। तो सबसे पहले जो असाइन हुआ दैट इज रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट, ये वाला असाइन हुआ। फाइन, नाउ यू सेड कि अब मैं अपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, यू सेड रिव्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट। फाइन, अब आपने बोला ओपन, ओपन करना है आपने किसको, रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर में आपको किसको करना है, फाइल अंडरस्कोर नेम। तो रिव्यूज अंडरस्कोर फोल्डर में क्या था आपका, ये था डाटा टेक्स्ट रिव्यू। जब आप इस फोल्डर में पहुंच गए हो, तो आपने उस फाइल नेम को देखा, फाइल नेम है रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट, और आपने उसको कहा रीड करना है। ओके कीजिए। जब आपने रीड किया तो सारा टेक्स्ट किसके अंदर आया, रिव्यू 3 का, रिव्यू टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, देन आपने क्या कहा, आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी में आपने क्या बोला कि आईडी में होना चाहिए फाइल नेम। तो फाइल नेम मेरा क्या था, रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मेरा क्या आया, जो अभी मैंने रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट को जो रीड किया था, वो टेक्स्ट मेरा यहाँ आ जाएगा सारा। देन आई सेड रिव्यू। अब क्या होगा, अब 1 बाय 1 जो रिव्यू के अंदर जो डिक्शनरी मेरी बन गई है, वो कहाँ चली जाएगी, इस लिस्ट के अंदर। यस गाइस, नाउ टेल मी, इज इट फाइन? सबको क्लियर है ये चीज? क्या आपको फर्स्ट फोर लूप क्लियर है? एनीवन हु इज हैविंग इश्यू? ओके, सो लेट्स गो मूव ऑन। अब आपने देखा आपके जो रिव्यूज है वो कुछ इस तरीके का होगा। आपका जो रिव्यूज अब जो बना है, आपकी जो लिस्ट बनी है, वो किस तरीके की बनी होगी, इस तरीके की, कि आपका 1 बाय 1 क्या होगा, पहले रिव्यू 3 आएगा, फिर रिव्यू 2 आएगा, उसी तरीके से उनके टेक्स्ट आएंगे। यस गाइस, माइंड सेट हो गया कि हमारा रिव्यूज जो बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट? नाउ आई सेड फॉर रिव्यू अंडरस्कोर नम, अब हमने क्या किया, हमने रेंज लिया लेन ऑफ रिव्यूज। अब रिव्यूज में कितने आएंगे, 4 आएंगे ना आपके पास, 0, 1, 2, 3। यस, इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूं, आपके रिव्यूज के अंदर 4 एलिमेंट होंगे। तो आपने क्या बोला, लेन ऑफ रिव्यूज 4। रेंज में अगर 4 आ गया, तो रेंज में 4 मतलब 0 to 3 एलिमेंट को एक्सेस करेगा ये, राइट? तो 1 बाय 1, तो जब मुझे एक्सेस करना है तो मैं 1 बाय 1 एक्सेस करूंगी। आई सेड फॉर रिव्यू अंडरस्कोर नम, सबसे पहले कौन सा नंबर आया, 0। देन यू सेड
आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाया, उसने बोला फॉर्मेट रिव्यूज रिव्यू अंडरस्कोर नम, आपने क्या लिया, रिव्यूज के अंदर जीरो, जीरो इंडेक्सिंग आई, जीरो पे आपने बोला आईडी। गाइस आपका कुछ इस तरीके का है रिव्यूज, ये जीरो इंडेक्सिंग पे है, सबसे पहला वाला है डिक्शनरी आपका जीरो इंडेक्सिंग पे है, जिसमें आपने बोला आपको आईडी को एक्सेस करना है, तो आईडी क्या होगी, एनीवन प्लीज लेट मी नो। आपने बोला रिव्यूज रिव्यू नम आईडी, तो सबसे पहले ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, क्या डिस्प्ले कराएगा आपको, एनीवन गाइस? यस, वेरी गुड। आदित्य सीखिए, हमारा जो लिस्ट में जो पहला फाइल आ रहा है वो रिव्यू 3 आ रहा है, and Namita, you have to tell the file name that was review3.txt। तो फर्स्ट फाइल हमारा जो है वो review3.txt है, तो सबसे पहले जो फाइल डिस्प्ले होने वाला है that will be review3.txt फाइल। देन यू सेड रिव्यूज रिव्यू, आपने बोला रिव्यूज का रिव्यू नाम, तो उसमें जीरो पे फिर से आपने बोला टेक्स्ट, अब उसमें टेक्स्ट में जो भी था वो आपको विजिबल हो जाएगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट दैट। what happened, review underscore text open mm, what happened, okay, तो बाय डिफॉल्ट एक ना IPYNB फाइल क्रिएट हो गई है वहां पर, ठीक है। हमने बोला रीड करना है हमें, एक सेकेंड, ओके 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 फाइन, इट्स ओके। तो नाउ फोल्डर नेम, फाइल नेम, रीड पॉइंट, तो ठीक है, इफ आई से फाइल नेम, ठीक है। आईडी की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं लैंड ना लेके अगर यहाँ पर मैं 1 to 5 कर देती हूँ, देन सॉरी कॉमा आएगा यहाँ पे, गाइस आपको समझ में आ रहा है कि क्या एरर हो सकता है? आपका एग्जीक्यूट हो गया है वहां पर, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट इज द इशू? नो एक्चुअली यहाँ पर IPYNB कोई फाइल है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिव्यूज ही है, ये बाय डिफॉल्ट कई बार ऐसी फाइल क्रिएट कर देता है। यस, और किसी का ऐसा कोई एरर होना तो नहीं चाहिए था। वेट अ मिनट, मैं अभी चेक कर रही हूँ।
ये टिल देन आप सब कीजिए अपना, और मुझे बताइए कि हो गया आप सबका। ओके ओके, गुड गुड। ओके ग्रेट। ओके फाइन, चलो मैं एक बार देखती हूँ। टिल देन आप ऐसे कीजिए, आपका ये कॉग्निटिव सर्विसेज हो गया। आप ऐसे कीजिए यहाँ पे एक बार के लिए, आपका जो की और एंड पॉइंट है ना, जो हमने अभी अभी जनरेट किया था, यहाँ पर जो कीज और एंड पॉइंट थे, तो फर्स्ट की और एंड पॉइंट को कॉपी करो और थर्ड कोड में लेकर आओ यहाँ पर। कॉग्निटिव कीज और कॉग्निटिव एंड पॉइंट्स के प्लेस पे इसको पेस्ट करो और इसको एग्जीक्यूट करो। टिल देन मैं अपना एरर रिजॉल्व करती हूँ। ये आयुष, वेट अ मिनट, एक्चुअली मेरा सेकंड सेल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आई एग्जीक्यूट दैट एंड देन आई विल स्पीक। ओके, टिल देन आपका 2 सेल्स तक आप एग्जीक्यूट कीजिए, एंड थर्ड सेल में कीज और एंड पॉइंट को कॉपी पेस्ट करो। कॉग्निटिव सर्विसेज से जो हमने कीज और एंड पॉइंट जनरेट किए थे, उनको कॉपी पेस्ट कर दो वहां पर। आपको की 1 एक्ट करना है और एंड पॉइंट कर रहे हैं, बस दोनों को आपको कॉपी करना है। यस, की 1 को कॉपी कीजिए और एंड पॉइंट को कॉपी कीजिए। और गाइस, ये जो आपके सामने ये जो IPY-NP चेक पॉइंट्स है ना, एक बार ये देख लो आप, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। अभी ये पोजीशन लास्ट पे हुआ है, इससे पहले एक बार हो गया था फर्स्ट पोजीशन पे। यस, तो ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा ना लास्ट पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि मैं लास्ट एलिमेंट को ना एक्सेस करूँ, क्योंकि यही चेक पॉइंट्स की वजह से एरर आ रहा था यहाँ पे।
No, Ayush. From last 5 minutes I was not speaking anything, but before I was speaking, see आपको second cell clear हुआ तो बताइए मुझे, I will, otherwise I will repeat for you. Guys एक बार मेरा ये error वाला point सुन लो एक बार सब. ये जो IPY NB check points है ये आपकी फाइल में भी आ सकता है. फर्स्ट टाइम नहीं आया इट्स ओके, बट अगर आप सेकंड और थर्ड टाइम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो कई बार ये फाइल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, नथिंग कि मैं जब इन फाइल्स को एक्सेस कर रही हूँ तो मुझे लास्ट वाली फाइल को एक्सेस नहीं करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, स्लाइसिंग कर दी. राइट मैंने इस os.listdir को एक ऑब्जेक्ट में रख दिया दैट इज लिस्ट, और मैंने लिस्ट के भी कौन से एलिमेंट को एक्सेस किया है, 0 से -1 तक. ओके ताकि ये जो -1 वाला जो भी पॉइंट है मुझे एक्सेस नहीं करना है. तो यही मुझे एरर दे रहा था. अब वो एरर नहीं आया तो मैंने कहा फाइल नेम इन लिस्ट, जो भी फाइल नेम में है 0 1 2 3 जितने भी है वो सब एक्सेस हो गए और मेरे क्या हो गए, रिव्यूज आ गए. वन बाय वन सबसे पहले क्या हुआ, रिव्यूज, यानी कि आपकी जो आईडी थी, उसके बाद आपका पूरा टेक्स्ट. आपको ये आउटपुट समझ में आया. आपका सबसे पहले क्या आया, आपका टेक्स्ट आईडी आया, और उसके बाद आपका क्या आया, आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट. यस गाइस, टिल नाउ इट्स क्लियर. Am I audible now? Yeah, please tell me. किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो then please let me know, because एक बार थोड़ा सा समझने की जरूरत है कोड को, बस बाकी क्या हो रहा है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. एंड वन मोर थिंग, जब आप एक बार इस जितने भी कोडिंग है पूरी की पूरी टेक्स्ट एनालिटिक्स की, इसको आप अपने कोड पे अप्लाई करोगे ना, जो अब आप करोगे आफ्टर द क्लास, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी. यस गाइस, ओनली 2 रिप्लाईज, सो वेयर आर अदर्स? वेटिंग फॉर एवरीवन. मोहम्मद आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा ना. यस रोजी, नमिता, यस आयुष. ओके ओके फाइन, ठीक है, सबका हो गया. कॉग्निटिव सर्विसेज हमने पहले ही कर लिया था ये वाला रिसोर्स यूज, राइट. तो अब हम चलते हैं आगे. और नो, नॉट नाउ, नो 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 वे, हम अभी कॉग्निटिव सर्विसेज और मशीन लर्निंग सर्विसेज को यूज करने वाले हैं, इससे ज्यादा अभी कुछ भी नहीं. नो सी, तो अब हमने सबने, आई थिंक आपने कॉग्निटिव कीज और कॉग्निटिव एंड पॉइंट्स को यूज कर लिया है. यस 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 आदित्य, या सी, यस. आप जो भी कुछ अभी तक आपने पाइथन में किया ना, जितना कुछ भी किया है आप सब कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट. कुछ भी. ओके, तो गाइस आपका सबका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया है. सबने अपनी कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज कर लिया, कॉग्निटिव कीज और कॉग्निटिव एंड पॉइंट, राइट. आदित्य फिलहाल अभी ये वाला काम कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे ये सब, ठीक है. अभी हमारा मेन पर्पस ये है, पहले इसको देख लो यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या है हमारा, कि हमने क्या किया, इंपोर्ट किया ओएस को, हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट है. हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, हमें कॉग्निटिव सर्विसेज का लैंग्वेज डॉट टेक्स्ट एनालिटिक्स से हमें इंपोर्ट कराना है टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट. अब ये क्या होता है, ये क्यों इंपोर्ट कराना है हमें, ठीक है. अगर जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, सर्वर्स को हमें यूज करना है,
तो सर्वर्स तक हमारी रिक्वेस्ट कौन लेके जा रहा है? क्लाइंट। क्लाइंट क्या करेगा, हम जो भी इनपुट देंगे वो सर्वर्स तक लेके जाएगा और वहां से जो भी सर्विसेज यूज करनी है वो हमें प्रोवाइड करता है क्लाइंट। ठीक है, फॉर दैट वी यूज आवर टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट, क्योंकि अभी हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट की ही जरूरत है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा कॉग्निटिव सर्विसेज क्रेडेंशियल्स को हम इंपोर्ट कराएंगे। क्रेडेंशियल्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल लाइक सम वाउचर्स, so we need that, we need these two, text analytics client and cognitive services credentials. Okay, then I said उस client का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला text analytics client, हमें एंड पॉइंट मिला और हमें क्या मिला, क्रेडेंशियल्स मिले। कॉग्निटिव की जो हमारा है वो एक तरीके से क्या है, हमारा वाउचर है, जिसे हम एक्सेस यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम, हमारी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, राइट। तो हमारे पास अब दो चीजें हैं, हमारे पास एंड पॉइंट भी है और हमारे पास क्रीडेंशियल्स भी है, राइट। तो हमारा जो ये टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट की हेल्प से हम इन दोनों चीजों को यूज करेंगे और हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दैट इज टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट। नाउ अब हमें क्या करनी है, लैंग्वेज एनालिसिस करना है। इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स ऑलरेडी देयर, आप करके देखो। ठीक है, नाउ आई सेड लैंग्वेज एनालिसिस। अब मुझे क्या करना है, लैंग्वेज एनालिसिस करना है कि मेरा जो टेक्स्ट है उसके लैंग्वेजेस को मुझे क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, किस टाइप की लैंग्वेज यूज की गई है। तो आई सेड डॉट डिटेक्ट लैंग्वेज। अब मैं क्या मेथड यूज कर रही हूँ, टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट का मैं यूज कर रही हूँ डॉट डिटेक्ट लैंग्वेज, जिसमें मैंने बोला जो रिव्यूज आए थे हमारे, अभी हमने ऊपर किए थे रिव्यूज, हमारे रिव्यूज जो हमारी लिस्ट बनी थी उसके अंदर क्या था, आईडी और टेक्स्ट, यानी कि रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट जो हमने अभी डिस्प्ले कराया था। आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, तभी पहले कोड को समझ तो लेते, तुम भागते बहुत जल्दी हो। मैं आपको दूंगी ना ये वाली फाइल, ये देखिए यहाँ पे, आप वेट, पेशेंस तो रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, भागो मत, सबको साथ ही चलना है। ओके आदित्य, वेट। नाउ आई सेड मुझे क्या करना है, रिव्यूज मैंने क्या क्या, डॉक्यूमेंट, मैंने बोला डॉक्यूमेंट इक्वल टू रिव्यूज, फाइन। अब आपने क्या बोला, फॉर रिव्यू अंडरस्कोर नम इन रेंज लैंड रिव्यूज। अब रिव्यूज की जो लेंथ थी हमारी 4 थी, तो 0 to 3 एलिमेंट्स असाइन हो जाएंगे। नाउ आई सेड रिव्यूज रिव्यू नम आईडी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि उसका आईडी लिया, आईडी हमारा क्या है, रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जब मैंने बोला लैंग्वेज एनालिसिस, लैंग्वेज एनालिसिस का जब मैंने डॉक्यूमेंट रिव्यू नम, लैंग्वेज एनालिसिस का मैंने जो मेथड यूज किया दैट इज डॉक्यूमेंट, और उसमें मैंने लिया इंडेक्सिंग रिव्यू अंडरस्कोर नम। तो रिव्यू अंडरस्कोर नम में क्या आएगा, 0। तो 0 पे एक्चुअली है क्या, तो सबसे पहले आप ये देखिए, तो मैंने अभी पिप इंस्टॉल नहीं किया है, देखिए मेरा ऑलरेडी वैसे इस पे इंस्टॉल्ड है तो इसलिए इसने मुझे एरर नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आप ये पिप ले लो आप मुझसे, नहीं तो फिर आपको लगेगा हमें नहीं दिया है, लीजिए। ठीक, तो अपना इंस्टॉल कर लीजिए अपने इस पिप अज़ोर को। टेक्स्ट के लिए ये है, जो अभी ये जो मैंने आपको पिप लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए बोला, एज़ोर कॉग्निटिव सर्विसेज लैंग्वेज टेक्स्ट एनालिटिक्स, ये किसके लिए, आपका टेक्स्ट एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, आपका इंस्टॉल हो गया होगा सबका। नाउ अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, नहीं आप इसके साथ ही इंस्टॉल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे एंटर करके इसके ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने उसको नेक्स्ट इससे ऊपर वाली सेल में इंस्टॉल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेल में कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, गाइस मैंने बोला डिटेक्ट लैंग्वेज और मैंने बोला डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू रिव्यूज, या डिटेक्ट लैंग्वेज और डॉक्यूमेंट इक्वल्स रिव्यूज। ठीक है,
ओके फाइन, नाउ आई सेड डॉक्यूमेंट में क्या होने वाला है। अब मैंने बोला कि मुझे चेक करना है एक्चुअली क्या आएगा। अभी तक तो मेरा ये यहाँ तक तो मेरा क्लियर था, ये चीज तो मैंने ऊपर भी की है। क्या हुआ था वहां पे कि हमने क्या किया था, रिव्यू अंडरस्कोर नम में क्या लिया था हमने, रेंज में 0 1 2 3 एलिमेंट हो जाएंगे। रिव्यूज के 0 इंडेक्स पे आईडी क्या थी, रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट है। फाइन, यहाँ तक आ गया हमारा रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है एनालिसिस। एनालिसिस क्या, लैंग्वेज एनालिसिस। किसके ऊपर, आके डॉक्यूमेंट के ऊपर। जो आपने डॉक्यूमेंट में क्या लिया, आपने रिव्यूज को लिया। ठीक है, आपने बोला रिव्यू अंडरस्कोर नम, यानी कि डॉक्यूमेंट में 0 आईडी पे क्या है, उसके लैंग्वेज को आपको एनालिसिस करना है। राइट, देन यू सेड कि आपको क्या करना है, लैंग्वेज डिटेक्ट करनी है किसकी, उस डॉक्यूमेंट के 0 इंडेक्सिंग पे, सिर्फ उसकी लैंग्वेज डिटेक्ट करनी है, पूरे डॉक्यूमेंट की नहीं करनी है। 0 इंडेक्स पे तो पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है, उस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या है सब नहीं बताना है, सिर्फ क्या क्या बताना है कि जो जो इंडेक्सिंग 0 पर है वो कैसे है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला लैंग्वेज प्रिंट हमारा रिव्यू नम आईडी हमारा रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट प्रिंट हो गया यहाँ। ठीक है, नाउ आई सेड लैंग्वेज अंडरस्कोर एनालिसिस डॉट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से, पहला देखो एडिशनल प्रॉपर्टीज आपका ये आया, देन आपका आया आईडी कॉलन रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट, फिर क्या आ रहा है, डिटेक्टेड लैंग्वेजेस आ रही है दिस वन। यहाँ तक आपका एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है डिटेक्टेड लैंग्वेजेस में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ क्या क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि लैंग्वेज 0 पे क्या क्या है। आप पहले हमें ये बताइए, तो 0 पे देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एडिशनल प्रॉपर्टीज, दैट इज यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, एडिशनल प्रॉपर्टीज, नेम, आईएसओ, इन स्कोर। डिटेक्टेड लैंग्वेजेस के 0 इंडेक्स पे क्या क्या है, तो ये सब चीजें अवेलेबल है, ये सारी चीजें। ये समझ में आ रहा है आप सबको, इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम कंफ्यूजिंग सा रहता है ये, बट आई एम श्योर एक दो बार आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके अच्छे से समझ जाओगे। यस गाइस, प्लीज अपडेट। यस एवरीवन, यस और नो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। आई विल बी स्लो, नॉट एनी इशू, बट टेल मी कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मैं अभी भी थर्ड सेल पे ही हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ, यही रहूंगी जब तक आपको समझ नहीं आता। ठीक है, मैंने सबसे पहले बोला मुझे एक टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट चाहिए, मुझे सर्विसेज को यूज करना है, Azure की सर्विसेज को यूज करना है, इसके लिए मुझे क्लाइंट चाहिए, टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट ही चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी हमें सर्विसेज चाहिए, वो हमारी फुलफिल कौन करेगा, टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट करेगा। सबसे पहले ये चीज समझ में आई। देन हमने बोला कि क्लाइंट की जो सर्विसेज को अगर यूज करना है, सर्वर की सर्विसेज को अगर यूज करना है, Azure सर्विसेज को यूज करना है, तो आई टोल्ड यू दैट 2 थिंग्स वी रिक्वायर्ड, कॉग्निटिव एंड पॉइंट एंड की। जो दोनों चीजें हमें यहाँ मिल चुकी हैं, हमने अभी कॉग्निटिव सर्विसेज के थ्रू एंड कॉग्निटिव की और कॉग्निटिव एंड पॉइंट दोनों लिए थे हमने, हमें दोनों मिल चुके हैं। नाउ अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, अब हम सर्विसेज को यूज कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है टेक्स्ट के ऊपर। नाउ वी कैन डू कि अब हमारे पास कीज भी है, हमारे पास एंड पॉइंट भी है। नाउ बाय वेरी इजी मेथड वी कैन यूज दैट। तो अब हमने क्या किया, हमने एक डिटेक्ट लैंग्वेज मेथड यूज किया, किसका, टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट का, जिसमें हमने बोला डॉक्यूमेंट्स में क्या है, रिव्यूज है। जितने भी अभी रिव्यूज आए थे ना, ऊपर आपकी लिस्ट बनी थी ना, यहाँ पे आपने देखा था कि आपकी एक लिस्ट बनी थी, ये वाली लिस्ट याद है आपको, अभी आपने 1 बाय 1 उस लिस्ट को यहाँ डिस्प्ले कराया था कि उस लिस्ट के अंदर क्या क्या थे, पहले आईडी फिर टेक्स्ट, पहले आईडी फिर टेक्स्ट, आईडी टेक्स्ट, आईडी टेक्स्ट, इस तरीके की आपकी लिस्ट बनी थी। ठीक है, उस लिस्ट को हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स रिव्यूज, राइट।
नाउ यू सेड कि आपने फोर लूप चलाया, फोर लूप में आपने क्या बोला कि उस रिव्यूज की जो लेंथ है वो हमने रेंज बना दिया। ओके, देन यू सेड 1 by 1 आपने रिव्यू अंडरस्कोर नम में दे दिया। ओके फाइन, देन यू सेड सबसे पहले रिव्यू नम में क्या आया, 0 आएगा ना सबसे पहले रेंज के थ्रू, 0 आया रिव्यूज में, 0 रिव्यूज में 0 पे आईडी पे क्या है, अभी हम सबने देखा था क्या था गाइस, वहां पे रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट था ना हमारा, अभी हमने सबने देखी थी ये चीज। यस, यस और नो, इतना बता दो, क्या आपको ये पहली फोर लूप समझ में आ रही है? यस, ओके, आई गॉट वन, ओके ओके ओके, चलिए, एक्चुअली आई एवरीवन रिस्पॉन्स मैटर्स, या थैंक यू। ओके, देन आई सेड एनालिसिस ऑफ थ्री एलिमेंट्स। अब हम देख रहे हैं, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ना मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया, अदरवाइज ये कोड यहाँ तक था, इस कोड को एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, दोबारा से क्लियर करने के लिए हर पॉइंट को मैंने अलग से लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लैंग्वेज अंडरस्कोर एनालिसिस, क्या था हमारा, यही था ना लैंग्वेज अंडरस्कोर एनालिसिस, यही ऑब्जेक्ट था ना। इसमें हमने क्या किया था, डिटेक्ट लैंग्वेज किसका, कि जो रिव्यूज के अंदर जो डॉक्यूमेंट थे, रिव्यूज के अंदर जो भी था हमने डॉक्यूमेंट में असाइन कर दिया था, उसमें हमने क्या बोला कि डिटेक्ट करना है लैंग्वेज को। अब लैंग्वेज के अंदर हो सकता है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो, हमें सारे नहीं चाहिए, हमें कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए। अब कौन कौन से, तो चलो देख लेते हैं। हमने बोला लैंग्वेज एनालिसिस में डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू नंबर 0 पे क्या है, हमने देखा कि लैंग्वेज एनालिसिस में डॉट डॉक्यूमेंट पे 0 पे क्या है, तो देखो गाइस यहाँ पे 0 पे क्या आ रहा है, आप ये देख रहे हो, ये पूरा डिक्शनरी आ रहा है। क्या देखा आपने, एक एडिशनल प्रॉपर्टीज था, एक आईडी था, एक डिटेक्टेड लैंग्वेज था, डिटेक्टेड लैंग्वेज, ठीक है। देन आपका है स्टैटिस्टिक्स डन, 4 इंफॉर्मेशन आ रही है आपको, बट आपको चारों नहीं चाहिए। आपने क्या बोला, आपने बोला डॉक्यूमेंट्स में 0, मतलब 0 मतलब ये डॉक्यूमेंट का ये पूरा पोर्शन 0 है, उसके अंदर डिटेक्टेड लैंग्वेजेस का 0 इंडेक्स नंबर, उसमें क्या है वो चाहिए हमें। तो वहां पे क्या आ रहा है आपका, आ रहा है एडिशनल प्रॉपर्टीज, दैट इज दिस वन, एंड देन यू सेड नेम, आईएसओ नेम और स्कोर, आपका ये सब डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब है। कितना क्लियर हो रहा है आप सबको, आपको ये वाला कोड क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। नाउ अब देखिए, हमने ये वाली चीज ऊपर भी प्रिंट करा ली थी ना, हमने कराया था ना कि इससे हमें रिव्यू 3 मिला था, राइट। नाउ आई सेड कि मैंने बोला लैंग्वेज एनालिसिस डॉट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नाम डिटेक्टेड लैंग्वेजेस 0, फाइन। अब मुझे उनसे उसमें से क्या चाहिए, मैंने बोला मुझे उसमें से चाहिए लैंग्वेज डॉट नेम, लैंग्वेज डॉट आईएसओ, लैंग्वेज डॉट स्कोर, मुझे ये सब चीजें चाहिए। ओके, नाउ सी, अब आपको क्या मिला, आपको रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट के अंदर जो लैंग्वेज मिली दैट इज इंग्लिश, कोड था आपका इंडियन और स्कोर है आपका 1.0। 1.0 इज व्हाट कॉन्फिडेंस स्कोर, कि आपका जो लैंग्वेज है उसका जो स्कोर है कॉन्फिडेंस स्कोर दैट इज 1.0। अब ये स्कोर से हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा जो टेक्स्ट है, जो रिव्यू आया था हमारा, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। इसने हमें ये तो बता दिया 1.0 है, 1.0 है, 1.0, 1.0, ठीक है। शुरू शुरू का इसने हमारे बता दिया कि पहले वाले जो टेक्स्ट का जो था उसमें जो स्कोर आ रहा है वो सबका 1.0 आ रहा है, ठीक है। अगर हमें ये चीजें भी चेक करनी हो तो हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम सेंटीमेंट में चेक करेंगे वो चीज। उससे पहले एक बार की फ्रेजेस, तो गाइस एक बार आप मुझे बताइए इतना ही बहुत है या एक बार और अभी आगे एक्सप्लेन कर दूं? Yes, we will do here that also. Yes, come on guys, let me know. No, it's a method in that. In language analysis आपका एक method है detected language. आपको कल पता है क्या करना है, आप एक काम करना गाइस, सी
छोटा सा काम करके आना कल। आप ना ऐसे करना, एक ना रिव्यू निकालना किसी का भी, आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का रिव्यूज निकाल लो, गूगल के निकाल लो, अमेजोन के निकाल लेना, ठीक है। तो टिल थर्ड वन आपको सिर्फ लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। आपको थर्ड सेल तक का काम करना है, 1 2 after passing the keys, installing text analytics and Azure, and then this one, yes। मतलब ये जो लास्ट जो लैंग्वेज एनालिसिस हमने कर लिया है यहाँ तक का आपका काम है। आप सबको एक काम करना है, ये मत सोचना कि हम स्किप कर जाएंगे। Yes, guys, to use the service without using keys and endpoint, you will not execute, you will not be able to execute this code। ठीक है, देखो ये पूरा क्या है, एक तरीके का मॉडल है, बना बनाया है ये आपके पास। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी ये बना बनाया आपको ये नहीं लेना, आपको अपना बनाना है। तो बस कोड आपके पास है, आप बनाओ। कीज आप कॉग्निटिव सर्विसेज से आपने ले ही लिए, अपने कीज लो, पब्लिश कर दो, बस यू कैन डू दैट। यस गाइस, टेल मी, इतना सा काम करोगे और कब तक मुझे सेंड कर दोगे मुझे बताओ। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब करेंगे। नो नो नो, एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग टाइम शागुफ्ता। आपको अभी तो 1 फाइल है, अभी अगर एक दिन में 2 फाइल होगी देन व्हाट विल यू डू। सी, चलो एक बार के लिए की फ्रेजेस भी कर लेते, कितना रह गया हमारा, ज्यादा नहीं है। एक बार के लिए ना गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है, फटाफट से गो थ्रू हो जाते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। फाइन, आपके पास अपने की एंड पॉइंट्स आपके पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, की फ्रेजेस को एक्सट्रैक्ट करना है। अभी तक हमने क्या किया था, हमने क्या किया था अभी तक, डिटेक्ट की थी लैंग्वेज, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था कि टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट के थ्रू डिटेक्ट किया था हमने लैंग्वेज को उस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें की फ्रेजेस एक्सट्रैक्ट करने हैं उस डॉक्यूमेंट में से, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट लिया, एक ही एलिमेंट लिया, राइट, रिव्यू अंडरस्कोर नम में, एंड देन मैंने क्या किया, की फ्रेजेस अंडरस्कोर एनालिसिस डॉट डॉक्यूमेंट रिव्यू नम। रिव्यू नम में क्या आया, पहला एलिमेंट, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए आपने क्या बोला, आपने बोला प्रिंट कराना है क्या, कि फ्रेज अंडरस्कोर एनालिसिस डॉट डॉक्यूमेंट, जीरो पे जो भी है उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सबको डिस्प्ले कराइए। अब उसने क्या किया, पूरी इंफॉर्मेशन थी, दैट इज एडिशनल प्रॉपर्टीज भी है, आईडी भी है, की फ्रेजेस भी हैं, एंड देन द लास्ट दैट इज स्टैटिस्टिक्स भी है। तो की फ्रेजेस में आपको क्या मिल रहा है उस डॉक्यूमेंट में से, आपने देखा हेल्पफुल स्टाफ, लॉम्बर्ड स्ट्रीट, गुड लोकेशन, गुड व्यू ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज, रिव्यूज, इंटरेस्टिंग हाउसेस, ये जितने भी आपको की फ्रेजेस मिले उस टेक्स्ट के अंदर से इसने सारे के सारे डिस्प्ले करा दिया आपको। देख रहे हैं आप यहाँ पे जितने भी हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट कराया आपने की अंडरस्कोर फ्रेज अंडरस्कोर एनालिसिस डॉट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नम, तो रिव्यू नम फॉर्म पे जो भी था इसने वो सब डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। देन यू सेट की अंडरस्कोर फ्रेजेस, की फ्रेज अंडरस्कोर एनालिसिस डॉट डॉक्यूमेंट जीरो डॉट की अंडरस्कोर फ्रेजेस। तो आपको क्या चाहिए था कि उस डॉक्यूमेंट जीरो पे सिर्फ आपको जो भी चाहिए वो सिर्फ की फ्रेजेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो सारी इन्फॉर्मेशन आई है मुझे सारी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे की फ्रेजेस दे दो, की फ्रेजेस जितने भी हैं वो सारे दे दो, वो सारे डिस्प्ले करा दो। ओके फाइन, तो आपने बोला फॉर की फ्रेज इन की फ्रेजेस, वन बाय वन जितने भी की फ्रेजेस है वो किसको असाइन हुए, की फ्रेज को, और वन बाय वन हर की फ्रेज यहाँ डिस्प्ले हो गया। अभी सिर्फ आपने एक ही रिव्यू का की फ्रेज देखा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अभी आपने सिर्फ वन का देखा ना, अब मैंने बोला लैन ऑफ रिव्यूज, अब क्या होगा,
अभी तक आपने 1 का देखा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यू विल से सबसे पहले रिव्यू 3 का आया, देन आपने देखा रिव्यू 2 का, रिव्यू 1 का एंड रिव्यू 4 का। तो फ्रेजेस जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, गुड होटल, गुड सर्विस, क्लीन रूम, रॉयल होटल, ग्रेट लोकेशंस, जिस भी तरीके के उन्होंने अपने उस टेक्स्ट के अंदर लिखा होगा, तो जो की पॉइंट्स थे उसने वो सारे पॉइंट्स हमें यहाँ दिखा दिए, राइट। द नेक्स्ट वन दैट इज सेंटिमेंट। तो अगर हम अपने टेक्स्ट के बारे में सेंटिमेंट पता करना है, दैट इज कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या स्कोर है वहां पर, कॉन्फिडेंस स्कोर अभी हमने देखा था, सेंटिमेंट के थ्रू भी स्कोर पता चलता है हमें, ठीक है। वो हमें डॉक्यूमेंट का पता चल रहा था, डिटेक्टेड लैंग्वेज के अंदर जो स्कोर आया था। अब हमें एक और स्कोर देखना है, दैट इज सेंटिमेंट स्कोर। तो सेंटिमेंट स्कोर में क्या हो रहा है हमारे पास, हमने बोला सेंटिमेंट अंडरस्कोर एनालिसिस, और हमने क्लाइंट के थ्रू सेंटिमेंट मेथड को यूज करके रिव्यूज में देखा। नाउ आई सेड रेंज 1 रिव्यू अंडरस्कोर नम मैंने असाइन किया, और मैंने क्या किया, सेंटिमेंट अंडरस्कोर एनालिसिस डॉट डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। अब आपने जब इसको प्रिंट कराया उस सेंटिमेंट स्कोर को, क्या किया हमने, अभी पीछे हमने जो किया था वो क्या किया था, की फ्रेजेस में, की फ्रेजेस सारे के सारे पिक किए थे, डॉट की फ्रेजेस, की फ्रेज एनालिसिस के डॉक्यूमेंट में से हमने सारे के सारे की फ्रेजेस को डिस्प्ले कराया था, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू सेंटिमेंट स्कोर को हमें क्या करना है, स्कोर को डिस्प्ले कराना है। तो यू विल सी हियर, देखिए आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा कि सेंटिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, आपने देखा एडिशनल प्रॉपर्टीज है, आईडी है, स्कोर है, स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन आपको क्या डिस्प्ले कराना है, सिर्फ स्कोर डिस्प्ले कराना है। तो इट्स सेंटिमेंट अंडरस्कोर स्कोर, और ये रहा आपका स्कोर। तो अभी किसका था, सिर्फ एक ही फाइल का था, हमने फाइल का नेम नहीं डिस्प्ले कराया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिव्यू 3 डॉट टेक्स्ट, उसका जो रिव्यू स्कोर आया है दैट इज 0.9999 समथिंग, और हमने बोला था अगर स्कोर लेस देन 0.5 हो दैट इज नेगेटिव एंड अदरवाइज पॉजिटिव। तो स्कोर तक का तो हमने ऊपर देख ही लिया कि कैसे वो स्कोर दे रहा है, बस फिर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई है और हमने देखा कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले करा दिया। तो हियर वी कैन सी some are positive and some are negative, and the last one that is entity 0 to 1, negative, it can be negative also, ठीक है। Now I said, oh you are having that, no, see it's negative 5.66, this one exponent number it is not 5.66, yeah. Okay, so now I want to extract known entities, entities like location, date, अगर हमें एक्सट्रैक्ट करनी है कि वो जो आपका रिव्यू आया था वो कौन सी लोकेशन से आया था या किस डेट को आया था, इस तरीके की एंटिटीज अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है अपने डाटा के ऊपर से, सो व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली से एंटिटी अंडरस्कोर एनालिसिस, क्योंकि आप एंटिटीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। नाउ यू सेड टेक्स्ट अंडरस्कोर एनालिसिस अंडरस्कोर क्लाइंट डॉट एंटिटीज, राइट, एंड देन डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू रिव्यूज। आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, एंटिटीज एंटिटी अंडरस्कोर एनालिसिस पे आपने बोला डॉक्यूमेंट 0 पे क्या है, पहले आपको ये शो कराएगा, देन आई सेड कि आपको उसमें से सिर्फ एंटिटीज निकालनी है। तो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दैट यू विल सी, देखिए आपका एंटिटी ऑब्जेक्ट के अंदर, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपने देखा कि इसमें एंटिटीज कौन कौन सी, पहले तो इसने बोला 0 पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, वो सारे एट्रीब्यूट्स आए आपके सामने। फिर इसने बोला 1 रिव्यू पे देखिए कि एंटिटीज कौन कौन सी है गाइस, ये देखिए ये सारी क्या है आपकी एंटिटीज है। देखिए यहाँ पे पहला क्या, एडिशनल प्रॉपर्टीज, फिर क्या है आपका आईडी, आप सबको समझ में आ रहा है, पहले क्या था आपका एडिशनल प्रॉपर्टीज, देन आपका क्या है आईडी, उसके बाद आ रहा है आपका एंटिटीज, नेक्स्ट है आपका एंटिटी, और एंटिटीज कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, टिल देन इतना आपका एंटिटीज है। तो आपने देखा यहाँ पे, आपने बोला फर्स्ट रिव्यू कि एंटिटीज कौन कौन सी है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये सारी एंटिटीज हैं,
अब आपको क्या करना है, इतनी सारी एंटिटीज तो देना चाहिए आपको। आपने बोला कि आपको क्या चाहिए आपने बोला कि मुझे एंटिटीज में से एंटिटी चाहिए, बट क्या, इफ एंटिटी डॉट टाइप इन लोकेशन, अगर उसने लोकेशन को एक्सट्रैक्ट किया इस एंटिटी डॉट टाइप में, देन उसने बोला उसको लिंक कर दो किससे, एंटिटी डॉट विकिपीडिया अंडरस्कोर यूआरएल से। आपने उसको लिंक किया उस लोकेशन को। इफ, अब कंडीशन है, दैट इज व्हाट, इफ एंटिटी डॉट विकिपीडिया अंडरस्कोर आईडी इज नॉट नन, अगर वो आईडी आपकी नन नहीं है तो आप ये डिस्प्ले कराओगे, अदरवाइज आप क्या डिस्प्ले कराओगे, दिस वन। तो देखिए यहाँ पे जब आपने देखा इसने लोकेशन एक्सट्रैक्ट की, दैट वाज फर्स्ट उस रिव्यूज के अंदर से, दैट वाज लॉम्बार्ड, और उसने क्या कर दिया, उसे यूआरएल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका हुआ, अभी यहाँ पे देखिए, तो अभी सिर्फ सिंपली उसने उसी सिंगल लोकेशन का उठाया, सिंगल वन का। अभी हम सारे पे काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने क्या कर दिया, अब वन बाय वन, पहले रिव्यू 3 का लिया, फिर रिव्यू 2 का लिया, फिर रिव्यू 1 का, और फिर रिव्यू 4 का, और इसने इसे लोकेशन और डेट टाइम उस पूरे पूरे पे दिखा दिया। इसने देखा हमने दो चीजें ली यहाँ पे, डेट टाइम एंड लोकेशन, तो दोनों को एक्सट्रैक्ट किया उस डाटा के अंदर से, उसको विकिपीडिया से कनेक्ट किया और डिस्प्ले करा। गाइस मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी आज की क्लास में कि दैट आपको सब कुछ क्लियर है, I'm not expecting that from you all, but still at least आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आएगा कि what we are doing, what we were doing। हमने क्या किया था, टेक्स्ट एनालिटिक्स को यूज किया, ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया डाटा, देखा हमने डाटा किस टाइप का हमारे पास, देन हमने क्या किया, हमने लैंग्वेज एनालिसिस किया, डिटेक्ट किया हमने लैंग्वेज को कि किस तरीके की लैंग्वेज है, राइट। उससे पहले हमने टेक्स्ट एनालिटिक्स क्लाइंट क्रिएट किया, बेस्ड ऑन दैट हमने लैंग्वेज डिटेक्ट की, हमने की फ्रेजेस देखे, हमने सेंटीमेंट देखे, राइट। फिर हमने क्या देखा, एंटिटीज देखी। यस गाइस, टेल मी टिल नाउ। बट वंस यू विल डू प्रैक्टिस, so I think somehow you will be clear on these all things. Yes everyone, waiting for response, please let me know. Guys, simply you have to write yes or no. No, not needed, it's already done. आपको बार बार कीज क्रिएट नहीं करनी, आपकी कॉग्निटिव सर्विसेज बन चुकी हैं, आपको सिर्फ उनको यूज करना है। This entity, yes, others please reply. I think so that it is a new thing for you all, but still everything is new for us first time, but when we used to it, so definitely हमें सब कुछ clear हो जाएगा, but slowly, right guys? it will be not, actually आपको कोड को लर्न नहीं करना है ना, आपको कोड तो मिल गया, आपको रिव्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, बस कीजिए। आपको सिर्फ कोड थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि कोड में एक्चुअली हो क्या रहा है, दैट्स ऑल। आपको लिखना नहीं है, आपको बना बनाया कोड मिल गया, आपको टेक्स्ट एनालिटिक्स का कोड मिल गया, राइट। बस आप कोड उठाओ, अपने अपने उस रिव्यूज को डालो जो फाइल में आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सब करोगे। And I will wait for you all. You all have my ID now. You all have to send this. See guys, one another batch is running in that. What they did, they all attempted this very well. What they did, see,
उन्होंने क्या किया कि सबने अलग अलग जगह से रिव्यूज उठाए, लाइक आई टोल्ड यू दैट आप गूगल से उठाइए, आप फेसबुक के रिव्यूज लीजिए, अमेजोन के रिव्यूज लीजिए, आपको मिल जाएंगे डाटा फाइल, सबके मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जस्ट लाइक आपने जैसे इस फाइल को इंपोर्ट कराया वैसे ही उस फाइल को आप इंपोर्ट कराएंगे, राइट, और आप उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि आपको देखना है लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट करना है, डिटेक्ट करना है लैंग्वेजेस को, की फ्रेजेस चेक करने हैं आपको कि कौन कौन से की फ्रेजेस यूज किए गए हैं, कौन कौन सी कीज यूज की गई, कौन कौन सी एंटिटीज हैं, सेंटीमेंट्स क्या है, स्कोर क्या है। बस एक दो बार आप एक बार के लिए चेक कर लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ इससे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट दैट। हाउ इज दैट पॉसिबल? Try to do that again, Aditya. Definitely, it will be done. Don't worry about that. Try it again. So I'm expecting from you all guys. So I hope you all will do and share it with me on Gmail. Right, everyone? Just you need to develop your interest. Okay then. See you all. See you tomorrow at 7 p.m. Same link. Okay. Good night, guys. Oh, Mohammed, yeah, how could I forget you? Okay, fine. Mohammed, pass me your, you just do one thing. Send me your mail ID on my, not mail ID actually. Send me your college ID on my mail. Okay, yeah, welcome guys. Yeah, send me your mail ID on my, your college ID on my mail ID. I will make your, that is your subscription and I will send it to you. Okay, yeah.